मुझे कुछ पहनना भी होगा ना, मैं क्या पहन के जाऊँ, मैं इधर क्या पहनूँ, अब मैं क्या करूँ. So she's like my stylist, my consultant. अब किसको hire करूँ, अच्छा किसको photographer को बुलाऊँ. So she's like the perfect person to go to. Okay, let's come towards Kafil. Now you've decided to come back. अभी Yeah. सिर्फ कफील पे ही हम आगे देखते रहेंगे आपको. आगे देखते रहेंगे, but I will be picking very pivotal projects. Okay. With messages. Like for me, I think कि message बहुत ज़रूरी है ड्रामे में. ड्रामे तो बनते रहते हैं. Yeah. और लेकिन अच्छी स्टोरी हो, अच्छा कैरेक्टर हो, जिसके अंदर मैं सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, तो मैं ज़रूर करूँगी. कफील तो इट वाज जस्ट फॉर मी लाइक, मतलब मेरे गोद में आके अल्लाह ताला ने दे दिया कि आई जस्ट हैड डिसाइडेड कि ओके आई वांट टू वर्क. और मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रही थी, लेकिन दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस की स्क्रिप्ट्स पढ़ रही थी. एंड Kafil just landed into my lap, and I was looking for something that was strong, a character that was strong. Didn't have too many days because I was going back to work, leaving my child for like 12-hour shifts हमारी होती हैं. तो मुझे नहीं पता था. अब माशाल्लाह मेरी बेटी स्कूल भी जाती है, so I have to drop her off, I have to pick her up. Then एक पूरा निज़ाम है हमारे उसके around. So I wanted to experiment first. It's what started as an experiment also ended up being an amazing script, and it had a great message. So मैंने सारी script side पे रखी, and I was like मुझे यही करना है. तो आया कैसे आपके पास? Who approached you for this? Dr. Ali Kazmi approached me. उनको पता चला कि आप देख रही हैं. हाँ, and he approached me, and word of mouth तो था कि Mariam's back and she's working again, and I was just like, it was just a regular day, and I had 2 missed calls from Dr. Ali Kazmi, and I was like, oh my god, I missed these calls. And I called him back. He's like, Mariam, एक project है, पता नहीं तुम करोगी नहीं करोगी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त project है, and this character is amazing, and I cannot think of anybody but you. So I was like, अच्छा बताएं, because I really trust his instincts. I've worked a lot with Big Bang, and they've given me some great work in the past, you know. So I was like, okay, आप मुझे बताएं कि what are you thinking? And then that's where he was like, अच्छा ये role है Sumaira का, and she's they're both teachers in the same school, and she's a very pivotal character who kind of and she's also a divorced woman, right? Which really hit home for me because I have friends who recently got out of bad marriages who have been in this situation. And I have been that person for Sumaira for them. तो ये एक ऐसी चीज़ थी, I was like, इसको मैं मना नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपनी बहनों को कितना स्ट्रगल करते हुए देखा है. ये हमारे माशरे ने उनको कितना तंग किया हुआ है. They're educated, they're talented, they're beautiful girls, and लड़कों की डार्क सोल्स की वजह से, उनकी गलतियों की वजह से आज वो सफ़र कर रही हैं, और उन पे एक लेबल लगा दिया है एज इफ, क्योंकि टैबू तो है ये एक बात. एंड मैंने वो सारी स्क्रिप्ट साइड पे की जो मैं पढ़ रही थी, एंड आई वाज लाइक मुझे यही करना है. ये व्हाई डज शी टेक अ दुपट्टा? वाज देयर ये ऑन पर्पस आप लोगों ने ये चीज़ रखी, या ये हो गया? Is there a logic behind it? There is no logic behind it. I wouldn't say logic. Is there a specific thought behind it? Is a reason behind it? I mean, देखिए, मैंने अपना, मेरे पास सिर्फ 3 दिन थे to design my character, and मैंने इस दुपट्टा ये सोचा था कि मेरे बाल छोटे हैं and मुझे लगाना पड़ेगा, but I had to show age as well. तो फ्रंट के तो मेरे बाल अगर मैं ऐसे टर्न करूँ तो वैसे ही वाइट है because of my sinus. हमें तो नहीं नजर, हाँ आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन मैं टर्न करूँगी so they're वैसे वाइट. So मैंने मांग निकाली, and I was like, listen, if I take this dupatta, automatically ये एक feel आ जाती है, because my character Sumaira is divorced. She's always, she doesn't care about the society, but she is a very graceful woman. She's a woman who is a senior teacher. She's been working all her life to make ends meet. अपनी बच्चियों को पढ़ाया. अब उसको फैशन नहीं करना, उसको बस वक्त निकालना है. जब आप पुराने उस टाइम में देखते थे, हमारे एक टाइम होता था, मुझसे भी पहले, जब
मेरी अम्मी की टीचर्स उनको पढ़ाती थी, वो काली हील पहनती थी और शलवारें होती थी और ऊपर से वो पफ बना के दुपट्टा लेती थी। आपने एक थोड़ा बहुत वो लाने की कोशिश की है। हाँ, उस मुझे ऐसा लगता था कि I should take like a dupatta where I would look graceful as a teacher. You know, मैंने heels भी पहनी है छोटी, वो जो pointed heels होती हैं. I get it. So वो दिखती विकती नहीं है, but वो just to feel the character, I added the dupatta and I also took the shawl on the side, and it just gave a very कि she has come out of such a bad relationship, but she still feels that she's handling herself with so much grace. Because she's all very like composed. She's a very composed woman. person, She's a very respectable woman in the society, despite that tag, that label that's given to her. मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज टू मी आई थिंक बहुत दफ़ा ये भी होती है ना कि ये कुछ ऐसा होगा या वैसा होगा, ये इंटरेस्टेड नहीं है घर में, या हम एक खास किस्म की कैरेक्टराइजेशन कर लेते हैं फॉर विद वुमेन हु हैव बीन डाइवोर्स्ड और हु चूज टू टेक डाइवोर्स. सो बाय गिविंग हर दिस काइंड ऑफ रिस्पेक्टेबल लुक, मुझे लगा कि एंड आई एम नॉट सेइंग कि जो औरतें दुपट्टा पहनती हैं सिर्फ वो रिस्पेक्टेबल है, नॉट प्लीज नहीं, इसको मैं बहुत सेंसिटिवली कहना चाहती हूँ कि गलत उसमें नहीं जाए, बट गिविंग दैट ग्रेसफुल कंपोज फीचर, वो हम ना थोड़ा सा जो डाइवोर्स के साथ एक गलत किस्म की थॉट, थोड़ी सी जो कैरेक्टर पे बात होती है, वो हम उसको थोड़ा सा मुझे लग रहा है एडजस्ट कर रहे हैं बाय डूइंग दैट. यू नो आई जस्ट फील लाइक कि हमें बस एज ऐड करनी थी. For me it was just that we wanted to add some age to it, and I know if I had longer hair I would look very young. I wouldn't have looked 40 and a mother of two. So that's why we added the dupatta, and it was my own idea to add it. And I also feel like jo jaise I know a lot of people say a lot of stuff about Maryam Nawaz, but I think she's a graceful woman. You know, she carries herself with grace, and for me, so मुझे बहुत वो look inspire की, and मुझे मेरी अम्मी भी बता रही थी कि जैसे उनकी स्कूल टीचर्स थी, वो हमेशा जैसे आपके पुरानी न्यूज़ एंकर्स होती है ना, so मेरे माइंड में बस वो था कि that would look really nice with Sumaira. जब मैं सुमेरा को पढ़ रही थी, that's how I pictured her. So Sumaira का स्पेसिफिक पर्पस है इस पूरी कहानी में. Sumaira is advocating a message. Is that correct? That's her whole purpose in the whole drama. Yeah, because she comes in a very refreshing way, and you know हम सबको जो जोड़ के चली जाती है, वो आती है और चली जाती है, you know. So I like it. So the thing is, even Sumaira का character, she's not a very संजीदा lady. She's a very chirpy, happy, despite एक जैसे दिखाते हैं ना कि बस सब खत्म हो गया सब. तलाक हो गई, खत्म हो गया, बस मैं बिखर गई हूँ. नहीं, she's happy because she got out of a narcissistic marriage. जैसे ज़ेबा को जामी अब्यूज कर रहा है, वो भी एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में थी, बट उसने अपने आप को डिसाइड किया कि मैं अपने आप को इस चीज़ से निकालूंगी. Like I said, if you're not going to save yourself, nobody will save you. She gives you उम्मीद, वो आपको होप देती है. You're right. और वो आपको यकीन दिलाती है कि जिंदगी रुक नहीं जाती, सिर्फ एक लेबल से जिंदगी नहीं रुकती. बट दो चीज़ें मेरे जहन में आती हैं जब वो for the sake of, you know, starting conversations, कि the drama is talking about कि कैसे हम, you know, एक अगर औरत इस तरह की टॉक्सिक मैरिज में है तो वो उसको और उसके बच्चों पे किस तरह अफेक्ट करती है. देन देयर इज सुमेरा हु वॉकड आउट. लेकिन मैं सोचती हूँ मरियम, रियलिस्टिकली हम में से कितने लोग, हमारे आसपास हम में से कौन इतना ब्रेव है, ये सोसाइटी में कितने लोग ब्रेव हैं कि वो एक डाइवोर्स्ड औरत को या एक सिंगल मदर को एक्सेप्ट कर लें, भाभी बना लें, उसको उसके लिए उसको जॉब देने के लिए भी एक्स्ट्रा सोचें कि हमारे हो जाएगा, या हमारा सिस्टम कितना उसको एक्सेप्ट करता है इस चीज को, राइट? ये तो फिर उनके जहनों में खामी है ना. दिस इज द रियलिटी ऑफ अ सिस्टम. हाँ, एंड दिस इज अ रॉन्ग रियलिटी, बिकॉज देखिए आपकी गलती नहीं थी. आपकी अगर शादी होगी, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जैसे ज़ेबा के केस में, जस्ट एक रुमाल पकड़ा गया था. एक रुमाल से पूछते तो क्या है, क्या था, कोई बंदा है, चलो उसका तमीज़दार फैमिली है आपकी, उससे शादी करा देते हैं. आपने एक रुमाल के पीछे उसकी आपने उठा के किसी से भी शादी करा दी, ठीक है. एंड देन सोसाइटी हमें प्रेशर करती है कि अच्छा यू नो व्हाट, ये भी क्वेश्चन आता है कि ओ ज़ेबा ने 4 बच्चे कर लिए, यू नो.
बात सुनिए, ये भी सोसाइटी का प्रेशर है कि बच्चा कर लो ठीक हो जाएगा, ओ बेटी हो गई चलो बेटा कर लो फिर सही हो जाएगा, फिर कमाने लग जाएगा। इस चक्कर में उसने बच्चे कर लिए। अगर ये हमारी सोसाइटी का भी यही हाल है कि हमें पीछे से ये आवाज़ें आती रहती हैं कि अच्छा तुम शादी कर लो, शादी के बाद वो ठीक हो जाएगा। इट्स अ pattern. So, that's how society pressures you. अगर for example, if there's a divorced woman, लेकिन उसका सिर्फ निकाह हुआ है, शादी भी नहीं हुई, रुखसती भी नहीं हुई. रुखसती भी is a concept that हमने इजाद की है, वरना तो in Islam it's nikah and walima and that you're done, right? But अगर there's not even a रुखसती done and एक लड़की है और उसकी शादी नहीं चली या एक उसी पीरियड में उसको समझ में आ गया कि this is not working out, तो आप उसका क्या कसूर? उसने तो बिफोर इवन एंटरिंग द रियल मैरिज शी एग्जिटेड आउट ऑफ इट, राइट? तो आपने उस पर भी वो लेबल लगा लिया। और जिन्होंने इतना ट्रॉमा अपने साथ अटैच किया हुआ होता है, दे हैव बीन थ्रू सो मच, दे जस्ट वांट लव, they just want protection, provision. Like I said before, capability, just because she's capable of being a single mother, of being bearing children, of picking and dropping them to school, of cooking for them or doing a job, does not cancel out कि उसको भी एक provider की ज़रूरत है, उसको भी प्यार की ज़रूरत है, उसको भी protection की ज़रूरत है. True. So are you reading any more scripts? Any other? I am reading scripts, but I think it's I have to do something that will top the feel. Okay. अभी तो ये perfect था मेरे लिए because it was short, sweet, simple, less days. But now I think I can get in the rhythm of it and go to work.